لشکر جرار نے، پاک دھرتی کی حفاظت فوج کے سالار نے، خواب چکنا چور دشمن کا بھی اذن اللہ ہوا، جو فتح حق کو ملی، جو فتح حق کو ملی، مانا اسے اغیار نے، مانا اسے ابو ذر ہے، ریسن میں آیا ہوں، فتح اپنے پڑھتا ہوں، پہلے بار سلیٹ کیا ہے، بہت زیادہ مزہ آیا۔ فوج کے سالار، فوج کے سالار، دھرتی کی حفاظت فوج کے سالار نے، ہم نے مٹی کی حفاظت کی جو کھائی ہے قسم، پھر ہماری جرتیں دیکھی درو۔ مدرسے کی انتظامیہ کا یہ اصول رہا ہے اور یہ معمول رہا ہے کہ جہاں پر ہمارے ہاں طلباء کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دی جاتی ہے، وہاں پر طلباء کو ذہنی طور پہ فریش رکھنے کے لیے اور ان کی جسمانی نشو و نما کے لیے مختلف ایونٹس ترتیب دی جاتی ہے۔ اس میں سے اس نے کی یہاں اس کا سر کچلا ہمیشہ دین کے انصار نے، دین کے انصار نے، ہار کا حق کا لڑا جو لشکر جرار نے، پاک دھرتی کی حفاظت فوج کے سالار نے، پاک دھرتی۔ اندر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو اسٹوڈنٹس کے درمیان مقابلے ہیں سوئمنگ کے، سلائڈس کے، وہ سب آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں اندر۔ بازو سے لیا حق ہے صدا حقدار نے، حق دبایا سرزمین۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں راجہ اسد، آپ سب کو جے ٹی ایف بلاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں جامعہ تحفیظ القرآن فتحیہ میں۔ ناظرین، ہر سال کی طرح اس سال بھی فتحیہ اپنے بچوں کو، اپنے ناظرے، اپنے قاعدے اور حفظ کے بچوں کو پکنک پر لے کے جائیں۔ یہ پکنک صرف تفریح کا نام نہیں بلکہ ایک ذہنی نشو و نما، جسمانی تربیت کا ایک حسین امتزاج ہے۔ آج ہم کو سنوے لگون کے اندر جامعہ فتحیہ کے بچوں کی ایکٹیویٹی، وہاں ان کے سلائیڈنگز مقابلے ہوں گے، وہاں سوئمنگ مقابلے ہوں گے، وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بچے بڑے پرجوش ہیں نکلنے کے لیے تاکہ جلدی نکلیں اور جلدی پہنچیں۔ لشکر جرار، لشکر جرار، لشکر جرار، مار کا حق کا لڑا جو لشکر جرار نے، پاک دھرتی کی حفاظت فوج کے سالار نے، پاک دھرتی کی حفاظت فوج کے سالار نے، مار کا حق کا لڑا جو لشکر جرار نے، پاک دھرتی کی حفاظت فوج کے سالار نے، خواب چکنا۔ الحمدللہ بخیر و عافیت ہم سنوے لگون واٹر پارک پہنچ گئے۔ بچے خوشی سے کھلکھلا اٹھے، کب سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے، آج صبح سے بلکہ پچھلے ہفتے سے انتظار کر رہے تھے۔ اندر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو اسٹوڈنٹس کے درمیان مقابلے ہیں سوئمنگ کے، سلائیڈس کے، وہ سب آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں اندر۔ فوج کے سالار، پاک دھرتی کی حفاظت فوج کے سالار نے، ہم نے مٹی کی حفاظت کی جو کھائی ہے قسم، پھر ہماری جرتیں دیکھی در و دیوار نے، ہم نے مٹی کی حفاظت کی جو کھائی۔ چلے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ سب کس چیز کے لیے سب سے زیادہ پرجوش ہیں، کہ پہلے گھڑ سواری کرنی ہے یا سوئمنگ کرنی ہے، سلائیڈز لینی ہے یا کیا کرنا ہے، بچوں سے پوچھتے ہیں۔ چلیے آئیے۔ السلام علیکم۔ السلام، کیسا لگ رہے ہیں یہاں؟ بہت اچھے لگے۔ آپ سب سے پہلے کیا گھڑ سواری کریں گے، سلائیڈنگ کریں گے، کیا واٹر سلائڈ، واٹر سلائیڈنگ؟ آپ گھڑ سواری کریں گے، آپ سب خوش ہیں؟ جی دھرتی کی حفاظت فوج کے سالار نے، حق دبایا سرزمین پاک کا جس نے کبھی، زور بازو سے لیا حق ہے صدا حقدار نے، حق دبایا سرزمین پاک کا جس نے کبھی، زور بازو سے لیا حق ہے صدا حقدار نے، یہ وطن تو دشمنوں کا ایک قبرستان ہے، منہ کی کھائی ہے ہمیشہ کے لیے غدار نے، کے لیے غدار نے، فوج کے سالار، فوج کے سالار، فوج کے سالار، فوج کے سالار، دھرتی کی حفاظت فوج کے سالار نے، سر فخر سے ہے مسلمانوں کا اونچا کر دیا، روز روشن کی طرح اس کا آیا۔ ہم ابو ذر ہے،
मैं सनवे आया हूँ, फतिया अपने पढ़ता हूँ। पहले बार स्लैट क्या है, बहुत ज्यादा मजा आया। रोशन की तरह इसका आया किरदार है। जश्न आजादी मनाते आज अहले वतन, चप्पे चप्पे ने गुलामी से लिखा इनकार है, से लिखा इनकार है। हार का हक्का लड़ा जो लश्करे जर्रार ने, आक धरती की हिफाजत फौज के सालार ने, आक धरती की हिफाजत फौज के सालार ने। हार का हक्का लड़ा जो लश्करे जर्रार ने, आक धरती की हिफाजत फौज के। मैं फतिया में पढ़ता हूँ। आज फतिया वालों ने बच्चों को सनवे लेकर गए। फिर मैंने पहली बार स्लैट किया, बहुत मजा आया। आक धरती की हिफाजत फौज के सालार ने, ख्वाब चकना चूर दुश्मन का भी इज़्निल्लाह हुआ। जो फतह हक को मिली, जो फतह हक को मिली, माना उसे अग़ियार ने, माना उसे अग़ियार ने। फौज के सालार, फौज के सालार, फौज के सालार, फौज के सालार। पहला सेशन कंप्लीट हुआ, बच्चों ने खूब एंजॉय किया, स्लाइडिंग ली, स्विमिंग की, घुड़सवारी की और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। दूसरे सेशन के अंदर सबसे पहले बाजमात नमाज अदा की गई। उसके बाद अब खाना खा रहे हैं, तरतीब बैठे हुए। खाने की मेन्यू की अगर बात करें तो वाइट कढ़ाई है, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक है और फिर मीठा भी, मीठे में आइसक्रीम रखी हुई है। तो अपने तलबा का बहुत ख्याल रखा हुआ है तहफ़ीज़ुल कुरान फतिया, ना सिर्फ जामिया में ही नहीं, अगर कहीं आउटडोर भी जैसे आज पिकनिक में आए तो अपने तलबा का खास ख्याल रखा जा रहा है। दीन के अंसार ने, हार का हक्का लड़ा जो लश्करे जर्रार ने, आक धरती की हिफाजत फौज के सालार ने, आक धरती की हिफाजत फौज के सालार ने। हक दबाया सरज़मीने पाक का जिसने कभी, जोर बाजू से लिया हक है सदा हकदार ने। हक दबाया सरज़मीने पाक का जिसने कभी, जोर बाजू से लिया हक है सदा हकदार ने। ये वतन तो दुश्मनों का एक कब्रिस्तान है, मुंह की खाई है हमेशा के लिए गद्दार ने, के लिए गद्दार ने। फौज के सालार जो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जो तलबा हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आए हैं सनवे के अंदर। मदरसे की इंतज़ामिया का ये उसूल रहा है और ये मामूल रहा है कि जहाँ पर हमारे यहाँ तलबा की तालीम और तरबियत पे तवज्जो दी जाती है, वहाँ पर तलबा को ज़हनी तौर पे फ्रेश रखने के लिए, उनके जिस्मानी नशोनुमा के लिए मुख्तलिफ इवेंट्स तरतीब दिए जाते हैं। उसमें ये हमारे यहाँ एक इवेंट होता है जिसमें हम बच्चों को मुख्तलिफ पार्क्स में लेकर जाते हैं बच्चों को, ताकि एक दिन की जिस्मानी नशोनुमा भी हो, जहाँ पर वो ज़हनी तौर पर भी अच्छा महसूस करें। और इसमें वो बच्चे होते हैं कि जो मुख्तलिफ जो बच्चे जो हैं वो साल जो है ना वो नहीं जा पाते कहीं इधर उधर, लेकिन उनको मदरसे की इंतज़ामिया ये भरपूर मौका देती है। इसमें से हार का हक्का लड़ा जो लश्करे जर्रार ने, आक धरती की हिफाजत फौज के सालार ने, आक धरती की हिफाजत फौज के सालार ने। हार का हक्का लड़ा जो लश्करे जर्रार ने, आक जी तो हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं इस जो पिकनिक को जो ऑर्गेनाइज किया, जो पिकनिक को हेड कर रहे हैं, जो सारे इंतजामात देख रहे हैं, जामिया फतिया के मुहतमिम के बड़े साहिबजादे अब्दुल फत्ताह साहब। उनसे पूछते हैं कि ये इवेंट करवाने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम फत्ताह साहब, क्या हाल है? फत्ताह साहब सबसे पहले ये बताएं हमें कि इस तरह की इस तफरीक आज बच्चों को जो सैर तफरीक के लिए आप लाए, इसका मकसद क्या है? बिल्कुल, इसका मकसद तो आप भी जानते हैं, क्योंकि तालिब इल्म जब मुस्तकिल तौर पर जो है वो मदरसे में बैठा रहता है, ज़हनी तौर पर वो पढ़ाई की तरफ अपने ज़हन को मुकम्मल मुतवज्जह रखता है, तो उसकी तरबियत के लिए ज़रूरी है कि वो बाहर निकले, बाहर और ज़हनी तरबियत के साथ साथ ज़हनी नशोनुमा के साथ साथ उसकी जो है जिस्मानी नशोनुमा भी हो, ज़हन थोड़ा खुले उसका। जी बिल्कुल, ज़हन उसका खुले और उसकी जो है अपना सेहत उसकी बढ़े, उसकी सेहत जो है वो इस तरह मनफी पहलू में नजर आती है हम लोगों को। इस तरह की ट्रिप माशरे में मदारिस या स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए कितना जरूरी है?
इस तरह की ट्रिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसकी वजह ये है कि एक मदरसे का तालिब इल्म अगर सिर्फ मदरसे के अंदर बैठा रहे बाहर का ये माहौल ना देखे तो फिर उसके जहन में सवालात नहीं आते। ज़हन उसका महदूद हो जाता है। मैं आपको मुख्तसर बताऊं कि तालिब इल्म को जब ये मदरसे के बच्चों को हम बाहर लेकर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखता है। अब वो चीज़ें देखने के बाद उसके जहन में मुख्तलिफ किस्म के सवालात पैदा होते हैं। वो उन सवालात से जो है वो उन सवालात को दूसरे से डिस्कस करता है, अपने उस्तादों से पूछता है या उनसे वो तरबियत हासिल करता है। सवालों से बहुत कुछ हो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मदार तरबियत का है। तरबियत का वो तरबियत हासिल करता है। अब वो एक अगर कोई तालिब इल्म या अपने बच्चे को कोई घर में महदूद रखे तो वो ज़हन उसका खुल नहीं सकेगा, और ये तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी है। तरबियत के लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि तालिब इल्म ये अपने बच्चों को मदरसे में बैठा के पढ़ाना शुरू कर दिया जाए, बल्कि तरबियत के लिए ये भी ज़रूरी है कि उनको बाहर का माहौल दिखाया जाए, घुमाया फिराया जाए, फ्रेशमेंट दी जाए उनका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की जो ट्रिप सैर व तफरीह दी, आपने पिकनिक दी है जामिया फतिया ने अपने स्टूडेंट को, क्या मुस्बत तब्दीली देखने जाएंगे अपने स्टूडेंट के लिए? मुस्बत तब्दीली तो इसमें इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर ये तब्दीली भी देखूं, ये अच्छाई भी देखूं। बुनियादी इसमें जो मुझे नज़र आता है सबसे बुनियादी चीज़ है वो इत्तेफाक और इत्तेहाद और आपस में भाईचारे की है। आमतौर पर ऐसा होता है, घरों में भी होता है, मदारिस में भी होता है, छोटी छोटी बात पे कोई लड़ पड़ता है आपस में, कोई फितरत हो जाता है। बिल्कुल, तो ऐसे मौके पे यहाँ पर आकर इस माहौल में आकर सैर व तफरीह के दौरान जो है ना वो आपस में एक मोहब्बत और उल्फत कायम हो जाती है। हमने अक्सर देखा है एक दूसरे के साथ नहीं लगती, लेकिन यहाँ पर आपस में एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हैं। तो हम सबसे बड़ी यही तब्दीली देखना चाहते हैं कि इन तलबा के दरमियान ऐसी इत्तेफाक और इत्तेहाद की एक मिसाल कायम हो जाए जो माशरे में एक जो है वो बेहतर तब्दीली ला सकें। इत्तेफाक और इत्तेहाद होगा तो माशरे में बहुत सारे जो है वो बेहतर तब्दीलियाँ आ सकती हैं। शुक्रिया फतेह साहब। बिल्कुल सालार ने पाक धरती की हिफाजत फौज के सालार ने की हिफाजत फौज के सालार ने, पाक धरती की हिफाजत फौज के सालार ने, मार का हक्का लड़ा जो लश्कर जर्रार ने, पाक धरती की हिफाजत फौज के सालार ने, ख्वाब चकना चूर दुश्मन का भी इज़्निल्लाह हुआ, जो फतह हक को मिली, जो फतह हक को मिली, माना उसे अग़ियार ने, माना उसे अग़ियार ने, फौज के सालार, फौज के सालार, फौज के सालार, फौज के सालार। तो गाइस आज के पिकनिक, आज के इवेंट हमारा इख्तिताम को जा रहा है, मगर आज की यादें तलबा की हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेंगी। जामिया फतिया का ये कदम इस बात की अलामत है कि तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुशियों के तजर्बात, रूहानी नशोनुमा और इन सब को साथ लेकर चलना चाहिए। JTF से अपने मेज़बान राजा सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद उसका सर कुचला हमेशा दीन के अंसार ने, दीन के अंसार ने, हार का हक्का लड़ा जो लश्करे जर्रार ने, पाक धरती की हिफाजत फौज के सालार ने, पाक धरती की हिफाजत फौज के सालार ने, हक दबाया सरज़मीने पाक का जिसने कभी, जोर बाजू से लिया हक है सदा हकदार ने, हक दबाया सरज़मीने पाक का जिसने कभी, जोर बाजू से लिया हक है सदा हकदार ने, ये वतन तो दुश्मनों